Okay. Good morning, kids. Welcome to the third point of OC, that is techniques of scientific management. As I told you, techniques of scientific management means we are not putting any formula or anything in it. We are just following the process of scientific method, and scientific means procedure wise, means one by one, step by step. So let's have a look toward it. The first point of techniques of management, as I told you that management is a group activity. Yeah, so many people are coming together with a common objective in their minds to achieve maximum returns. Yeah, we can say maximum amount of profit. Yeah, with available minimum resources. But of course, yes. So the third point, which is the last one of your lesson, techniques of scientific management means you have to follow the steps one by one. So the first point of it, techniques of scientific management, is your work study. Work study means what? Before starting your work, yeah, before processing your work, you have to you have to do a detailed study about your work. है ना? You have to have a detailed study about your work. Means what kind of work you are planning to do, what kind of job you are doing and all. So before doing work study, you have to plan time according to it. You have to decide method for the same. You have to decide motion for the same, means what kind of activity you are going to conduct in your organization. And the last one is fatigue. Fatigue means what kind of stress, mentally or physically, you are going to apply on your employees and all. So let's have a look on all these points one by one. The first point is time. Okay, before starting your work, you have to decide in advance ki how much time it will take to complete the work, the particular work. Okay, so first you have to decide the time for the work, है ना? Means in 1 hour, in 2 hours, in 3 hours, whatever time you are required, you just have to decide it in advance. Okay, to complete the work. And then after that you'll come to know कि first we'll decide कि within 1 hour we'll complete the work, and after completion of work you'll come to know कि one it's completed in 1 hour, 2 hour, 3 hour, and so on. So that you can easily understood. Yeah, you'll come to know कि how much time it will take to complete a given task, 1 hour, 2 hour, or 3 hour. Okay. The next one is method. Yes, method. It's also known as task. For example, you are working in an organization and your boss, yeah, your management is delegating, yeah, assigning some authorities or some jobs to you. So it's your responsibility to complete the given task by choosing a best method for the same. It's up to you okay, what kind of method you are choosing and how you are accomplishing your tasks, your works and all. The next one is motion. Motion means what? Movement of employees and machines. Now the word work has been delegated to you by your senior executives or management. Now it's up to you कि what kind of action, motion you are taking to complete the task, to complete the work. Means it's also known as movement. Movement means move, how you are moving your hands, your mind, your machines to complete the task. But of course machines are run by employees. Okay, the last one is fatigue. Fatigue means what? It's in common language we can say it's a mental and physical stress of employees. It's a mental and physical stress of employees. For example, you are working in an organization. So standard hours are 8 to, we can say 8 to 10 hours. And a normal employee can work in an organization for 8 to 10 hours. You'll uh, if you are telling them to work for 23 hours, yeah, 22 hours in a day, so it's impossible for them, है ना? It is impossible for them. So it is mental or physical stress. If you are क्या बोलेंगे रे? If you'll tell them कि you have to work for 23 hours in a day, so it will be very hectic or it will be fatigue for them. Means a single person, a single employee is unable to work for 24, yeah, 22 hours in a day. It is beyond their mental or physical capacity.
एंड इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन ना, उनका स्ट्रेस बढ़ेगा, नथिंग, वर्क तो प्रॉपर होगा नहीं, उनका सिर्फ स्ट्रेस बढ़ेगा. नाउ इन हिंदी, नाउ जो हमने देखा था टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो हमने देखा था उसमें सबसे पहले हमने देखना होगा वर्क स्टडी कैसे करनी है, कि जो भी काम हमको असाइन किया हुआ है, जो भी काम हमने करना है, उस काम को हम कैसे अच्छे से कर सकते हैं. तो उसके लिए हमने करना होगा, सबसे पहले तो हमने टाइम डिसाइड करना होगा कि मुझे पर्टिकुलर 10 बॉक्सेस प्रिपेयर करने हैं, 10 बॉक्सेस मैंने प्रिपेयर करने हैं, तो उन 10 बॉक्सेस को बनाने के लिए मुझे वक्त कितना लगता है, कितना मुझे टाइम लगता है. उसके बाद आ जाता है कि मैं कौन सा मेथड फॉलो करूँ कि मैं 1 घंटे भर में 10 के बदले 15 बॉक्सेस बना लूँ, 10 के बदले में मैं 15 बॉक्सेस कैसे बना लूँ. एंड उसके बाद में आ जाता है मोशन, कि अगर मुझे 1 घंटे में 15 बॉक्सेस बनाने हैं तो मैं मशीन की मदद से बनाऊँ या एम्प्लॉयज़ की मदद से बनाऊँ, जिससे मेरा काम कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए. एंड लास्ट पॉइंट इज फटीग. यस, अब मुझे ये सारे काम तो करने हैं, 1 घंटे में मुझे 15 बॉक्सेस बनवाने तो है, बट मुझे मेरे जो भी वर्कर्स है उनका मेंटल और फिजिकल लेवल भी चेक करना है कि कैसे वो काम कर पाते हैं या नहीं, मुझे उनको भी स्ट्रेस नहीं देना है. ओके, आइए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं. The next point is standardization of, the next point is standardization of tools and equipments. Okay, move toward the next point, है ना. First you have to decide time for the work, है ना, what has been assigned to you. The next process या next step for the same is standardization of tools and equipments. Means you have to choose best tools and equipments to prepare या to manufacture your product. आपने क्या करना है, एक एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट या एक एकदम स्टैंडर्ड टूल्स या इक्विपमेंट्स, जो भी रॉ मटेरियल आपको लगता है वो आपने, अगर आप अच्छी क्वालिटी का लोगे तभी आपका जो भी पर्टिकुलर चीज़ है वो बहुत अच्छे से बन पाएगी. नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक. The next one is scientific task setting. The next point is scientific task setting. Okay. The third point is साइंटिफिक टास्क सेटिंग. यस, अब साइंटिफिक टास्क सेटिंग के अंदर क्या आ जाता है कि आप लोग एकदम प्रॉपरली, बहुत सिस्टमैटिकली आप लोग एक पर्टिकुलर टास्क को सेट करते हो. उस टास्क को आप कैसे सेट करते हो, फॉर एग्जांपल कि एक जो वर्कर है, एक जो मेरा एम्प्लॉई है, वो पर्टिकुलर काम कर रहा है, तो दिन भर में उस काम के लिए उसको वेजेस कितनी देनी चाहिए, मतलब दिन भर की पगार कितनी देनी चाहिए, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 300 रुपीज़, जो भी है वो. फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज रनिंग अ मशीनरी, एक मशीनरी पे काम करने वाला बंदा, इट्स वेरी रिस्की. तो इन दैट केस इफ आई विल गिव 100 रुपीज़ टू हिम, तो वो बोलेगा नहीं इतना रिस्की काम है, मुझे 100 रुपीज़ ही मिलते हैं, तो ही विल नॉट वर्क फॉर द सेम. और अगर उसी काम के लिए उसको 300 रुपीज़ दिए जाए तो द पर्सन इज एबल टू वर्क विथ मी. सो द सेम थिंग इज कि साइंटिफिक टास्क मैनेजमेंट, टास्क सेटिंग इज how much wages you are providing to the employees for, क्या बोलेंगे, to complete the particular task or work, and what kind of technique the particular person is being, the person is following. वो बंदा किस तरह से काम कर रहा है और कौन सी मेथड से काम कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट आपको उसको उसकी सैलरीज प्रोवाइड करनी होगी. यानी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज scientific selection and training. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन ना कि फ्रेशर को हम लोग एडमिशन दे देते हैं या फ्रेशर को हम लोग अपॉइंट कर लेते हैं हमारी कंपनीज के अंदर विदाउट एनी एक्सपीरियंस. सो साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग इज द प्रोसेस कि दोज हु आर सेलेक्टेड फॉर द पर्टिकुलर जॉब, जो भी बंदा, एक बंदा है फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको मैनेजर की पोस्ट के लिए चूज किया है, सो द पर्सन
have such kind of capabilities to handle, to manage, to tackle all situations which are occurring in your organization. ठीक है, एक जो मैनेजर मैंने अपॉइंट किया है उस बंदे में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए कि वो सारे काम अच्छे से कर ले, सारे टास्क वो सब दूसरों से काम करवा के ले ले, है ना, टू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स एंड ऑल। और अगर मैं किसी और के बारे में बात करूँ कि जैसे मैंने एक असिस्टेंट मैनेजर अपॉइंट किया हुआ है, असिस्टेंट मैनेजर या एक जिसे हम लोग बोल सकते हैं सुपरवाइजर अपॉइंट किया हुआ है, अब उस बंदे को फ्रेशर है, कुछ इतना नॉलेज नहीं है, तो इन दैट केस वी हैव टू वी मीन्स एज अ मैनेजमेंट वी हैव टू प्रोवाइड ट्रेनिंग्स टू देम, है ना। हमने उनको कुछ ट्रेनिंग दिखानी है कि ऐसे आप काम करो, ऐसे आप ऑब्जर्व करो, ऐसे करो, वैसे करो एंड ऑल, उस हिसाब से आप लोग उस पर्टिकुलर काम को कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइंटिफिक सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज अगला हो जाता है हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद में हो जाता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन। आइए नाउ ये तीन ही पॉइंट्स बचे हुए। अब अगला हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग बट योर, है ना, हाउ योर प्लानिंग फॉर योर वर्क, हाउ you are completing the same work and how you are achieving your desired goal, targets and objectives. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो फंक्शन कर रही है वो प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं, प्लानिंग प्रॉपर कर रही है या नहीं, जो भी काम है उसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर रही है क्या नहीं, और अगर ये दोनों चीजें वो परफेक्टली कर रही है बट ऑफ कोर्स एंड में उसको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल ही जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या, ये जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा था कि ऐसे प्लान करेगी, ऐसे डिसाइड करेगी, ऐसे अचीव करेगी और ऑल, ये सारा हमने क्या किया था, एक दिमाग में सिर्फ माइंडसेट किया हुआ था, एक सिर्फ ख्याली पुलाव बनाया हुआ था। सो हाउ दे आर इम्प्लीमेंटिंग द सेम थिंग्स ऑन इन योर ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने ये सारी खिचड़ी तो बना ली कि हम पहले प्लान करेंगे, फिर मिलके काम करेंगे, फिर टारगेट होगा, फिर प्रॉफिट होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा एंड ऑल। अभी तक के इस चीज़ पे हमने इम्प्लीमेंटेशंस किए हुए नहीं है। जब तक हम उस पर्टिकुलर चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक हमको रिजल्ट्स देखने नहीं मिल सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज वेज रेट। वेज रेट मीन्स व्हाट, फॉर एग्जांपल्स as I told you, 3 types of people are working in your organization. First one is top, middle and low, है ना। 3 types of people are working together in a single organization. Now top level management, they are shouldering the, we can say, they are shouldering the highest, yeah, we can say, responsibilities of your organization. The middle one, they are least bothered about the things, and if we are talking about the low level, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता है। क्योंकि एक मैनेजमेंट के अंदर 3 टाइप के लोग काम करते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। टॉप लेवल की अगर हम बात करें तो टॉप लेवल वालों के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत होती है, इसलिए जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे आर अर्निंग हाई सैलरीज। मिडिल लेवल वालों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि भाई ठीक है जो हो रहा है टॉप लेवल वाले करेंगे, हमने सिर्फ जाके प्रेजेंट ही मारनी है नॉल, तो they'll get as compared to them, उन लोगों को थोड़ी सी लो सैलरीज मिलती है। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लो लेवल मीन्स व्हाट, दोज हु आर डूइंग स्वीपिंग, मॉपिंग, फर्श पोछते हैं, पोछा लगाते हैं, जो भी करते हैं, वो लोग दे आर कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ लो लेवल मैनेजमेंट। तो इन लोगों को तो किसी भी चीज़ से फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप ऊपर काम करो मत करो, जो करना है करो, इट्स अप टू यू, आपने करना है करो, नहीं करना है मत करो। इनको सिर्फ उनकी सैलरी से मतलब है, इनको सिर्फ इनकी वेजेस से मतलब है, तो इन लोगों को सैलरीज भी बहुत कम मिलती है। सो दिस इज योर थर्ड पॉइंट, दैट इज वेज रेट। तो वेज रेट इज बीइंग डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द रेस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन और delegated to the authority, sorry, to the employees. Those who are shouldering the top level responsibilities, they are earning high salaries. About middle, उन लोगों को low salaries मिलती है, and for low persons low salaries मिलती है। So this is we can say this is the end of your first lesson. In that हमने सिर्फ इतना देखा है कि
मैनेजमेंट कैसे काम करती है या मैनेजमेंट किन तरीकों से दूसरों से काम करवा के लेती है नॉल। ओके, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।